Hello friends, this is Sherry Datta once again and you're watching 101 on DFTV. Friends, I have a very special guest in my studio who has always believed and still believes that whatever good or bad may come our ways, we can make always something of it very meaningful and we can transform it something of value. Who is that person who takes things so positive, who is a certified image consultant, who is an astrologer, who is an palmist, who is a tarot card reader? Oh my God, she is a wonderful woman inside and outside. Ladies and gentlemen, let me welcome the one and only Gitanjali Mehran. Namaste Gitanjali ji. Namaste Sherry. Welcome. Thank you so much. अमेरिका में आपका स्वागत है. Thank you so very much. Thank you. Okay. Friends, my first meeting with Gitanjali was amazing and she left me with so many questions that I feel very important to discuss them with you. Gitanjali, am I right? Yeah, sure. I think those mysterious conversations, Yes. you remember? Yes. So, I think me as a being a TV host, I think few things becomes more comfortable and more understandable for me. पर जो दूसरे लोग हैं, आम लोग हैं, उनके लिए to understand gemstones, to understand face reading, to understand chronology, to understand graphology, ये बड़ा मुश्किल है. So ये सब हमें बताइए कि ये सब कुछ एक being a woman, ये सब आप कैसे मैनेज करते हो और ये सब how it started? It started, Sherry, I guess, my son, when you talk about What's his chronology, name? his name is Moksh. Okay. So wonderful I name. guess Moksh has shown me the rasta, the path of divination. And when- Moksh has shown you the way, yeah, the path. Moksh has shown me the Beautiful. way. Moksh has shown me the beautiful heavenly light Amazing. from universe. And when he was born, after he was born, How I old he is started. now? He's now 18, Okay. and everything started after he was born. Okay. So I started taking keen interest in all the fortune predicting sciences जी. and the numerology, astrology. So I was wondering कि how this path is taking me towards a different light. तो a मोक्ष universal को light. ये सब कब से शुरू हुआ? मतलब आपका तो मैं मान सकती हूँ, आप एक मम्मी हो, आप एक वंडरफुल जो है डॉटर इन लॉ हो और ब्यूटीफुल वाइफ हो. अभी भी आपके हस्बैंड जो है इतना मतलब केयर कर रहे थे, हम सब देख रहे थे वो. ओके, तो आप मुझे बताओ कि मोक्ष अभी तो 18 इयर्स का है, तो उसको ये सब कैसे इंटरेस्ट हुआ? मोक्ष को कौन सी उम्र में हुआ? मोक्ष को इंटरेस्ट अभी उसको इंटरेस्ट अभी नहीं है. It is just because his name is Moksh. Right. So I am the mother. Yes. So probably I gave birth to him. So the moment I used to call him Moksh and I started calling his name Moksh. The more times you call a name, Correct. I guess the significance and the pious connection with the mother and the son Yes. becomes very strong. Right. So, and you know what is the name of Moksh, Of what's the course. meaning of Moksh. Yes. And everybody wants Moksh in today's life, right? Right. We all want Moksh from the cycle of birth and death. बिल्कुल So ठीक है. my son has shown me a path. My son has shown me a way where I am helping and healing people, and I am helping them to proceed towards moksha. That is the true enlightenment. ओह अमेजिंग, ब्यूटीफुल. गीतांजलि जी, औरतों के लिए ना बड़ा मुश्किल होता है अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना, I know. जो कि सच्चाई है. I understand. हम लोगों को कोई थोड़ा सा कहते हैं ना, औरत एक बेल की तरह होती है, जहाँ उसको सहारा मिलता है वो फिर वहाँ लिपट जाती है. I know. तो आप एज अ वुमेन है ना, आपको जब लोगों के साथ आपको मेंटली स्पिरिचुअली खास तौर से माना जाता है कि ये मेल डोमिनेटिंग वर्ल्ड I है. know. यहाँ I पे understand. आदमी जो है वो थोड़ा सा आपको जगह देने में थोड़ा टाइम देते I हैं. know. एक औरत है, घर गृहस्थी संभालेगी, आप खुद अपने इमोशंस पे कंट्रोल करेगी या लोगों को करवाएगी. तो वो जो टाइम पीरियड था आपके लिए, जब आपने ये डिसाइड किया कि प्रोफेशनली इस फील्ड में आना है, और मेरी आपसे जो मुलाकात हुई है बहुत अमेजिंग हुई है, हमने बहुत कुछ शेयर किया है, आपके लिए कितना चैलेंजिंग था ये? It was very challenging for me, Sherry. I remember when I went for my first international symposium to Malaysia, Bangkok and Singapore. जी. And I reached the airport and वहाँ पे बहुत दिग्गज लोग थे. I think I can बहुत imagine. लोग, and I Yes. was the younger most. And when they looked at me and they said, "Your father is an astrologer," I said, "No, I am the one."
So they said, अच्छा आप एस्ट्रोलॉजी करती है, कितना साल हो गया, and all those questions, you know. I somehow felt कि ये फील्ड बहुत इजी नहीं है मेरे लिए, because यहाँ पे बहुत एक से बढ़ के एक लोग हैं जो काफी एक्सपर्टाइज हैं. But then in that symposium, that was in Malaysia, Bangkok and Singapore in 2006, Okay. I was in top 5. So that was like after the entire symposium was over, all those people, those who were asking me first, जी. कि how long you've been doing, they came to me and they said you've been doing really nice and we are very happy and we want you to proceed. तो कुछ ऐसा हुआ उस सेमिनार के दौरान कि आपको टेस्ट करा गया, आपको कुछ ऐसा पूछा गया कि चलो देखते हैं ये आइए यहाँ पर? वहाँ पे लोग आते हैं दिखाने के लिए. People come and show their horoscopes. So when I was seeing, so what happens is after they are done with their readings and everything, once they are going back, they rate us from 1 to 10. अच्छा, So- लोग वहाँ पे रेट करते हैं. Yeah, people come there to show their horoscope, their palms, their tarot cards. So after they are gone, so the rating and everything is been analyzed and calculated. So out of 100 astrologers, I was in top 5. तो 2006 में वो आपका पहला टूर था. That was my first और international. उसके बाद आपने कितना कुछ अचीव किया, हमारे दर्शकों को बताइए. उसके बाद बहुत अचीव किया. Then I was associated with Big 92.7 FM. Right. And I was predicting for callers. I was giving them tips. Then I was also there with Times of India, Jammu, where I was writing articles for them. Amazing. And then there was no looking back after that. I was like. तो फिर आप मतलब जैसे कहते हैं मजबूत खंबे की तरह आप फिट हो गए थे. Yes. आपकी अपनी जगह बन गई थी, पर शुरू में मुश्किल था. शुरू में it was very challenging because I feel male astrologers ज्यादा हैं इस फील्ड में, जी. फीमेल बहुत कम है. रीजन क्या है? आप जो हमारी अब जो फीमेल ऑडियंस इस समय आपको देख रही है, बहुत सारी उनमें हैं जिनको जिसे कहते हैं कि इंट्यूशंस होती हैं, राइट? तो किस तरह से वो अपनी इंट्यूशंस को और अपनी जो इनर प्रेडिक्शंस होती हैं उनको कैसे प्रोफेशनली वो लोग ले सकती हैं? I feel every lady is born with a sixth sense. No wonder woman is placed next to God. So जी. I guess हर woman को एक intuition God gifted होती है, जी. better than men. We need to meditate every day to align ourselves to higher consciousness. आप मेडिटेट को कैसे बयान करेंगी? कैसे मेडिटेशन, अगर हम मेडिटेशन बोलते हैं तो some people think it कि बड़ा meditation मतलब भारी या भरकम भारी लगता है भरकम meditation है. करना, They 2 say ढाई meditation घंटे. मतलब एक posture में बैठना हाँ, है, meditation true. करना है. मेरे लिए भी ऐसे ही था पहले. I would suggest meditation is best form of meditation you do is sleeping. Now sleeping is also a form of meditation. हाँ, उसमें stages Resting, होती हैं. yeah, resting, taking a short nap, just relaxing yourself, that is also a form of meditation. जी. But what happens is जब हम सोते हैं या नैप लेते हैं, उस टाइम पे हमारे कान में कोई म्यूजिक या कुछ अगर साथ में होता है, so it relaxes our nerves. ठीक बात है. अदरवाइज आप रात को सोते हो तो 100 तरह के ख्याल दिमाग में होते हैं. नेक्स्ट दिन कैसे आने वाला है, कल किसको मिलना है, जी. कल कोई मीटिंग है कि नहीं. सो वी आर ऑलवेज ऑक्यूपाइड विद आवर थॉट्स. ये बात तो बिल्कुल ठीक है. Okay, so when I talk about meditation, I feel any one of us should get into some divine instrumental track, and then आप उसको कान में लगा के and then you relax yourself, and that is the best form. गीतांजलि जी, ये भी बड़ा कंफ्यूजिंग है. आप जब कोई इंस्ट्रूमेंटल रिफ्लेक्सोलॉजी और कुछ इस तरह का म्यूजिक, मेडिटेशन म्यूजिक चलाते हो ना, तो बड़े सारे आ जाते हैं. ऐसा लगता है एक टाइम था जब रेडियो के ऊपर आप एक चैनल को सेट करते थे और थोड़ा सा म्यूजिक सुना करते थे कि अरे भाई कुछ सुनने में आ रहा है. आजकल इतना कंफ्यूजन्स है. सबसे पहले तो आपको ये नहीं पता चलता कि आप किसके पास जाओ. आपको हर कोई बहुत इंप्रेसिव लगता है और जब आप उनसे मिल के आते हो तो वो आपको बिल्कुल कुछ नहीं लगते. आपको लगता है कि अरे टीवी में सुन के काम चल रहा I है, know. वहाँ पे फलाने फलाने बाबा जी आ रहे I हैं, know. वो टीवी पे आशीर्वाद देंगे तो अपना काम चल काम चल जाएगा, जाएगा. I तो know. बस ठीक है. तो इससे लोगों का विश्वास जो है बन के भी टूट रहा है. I know. उससे जो हम लोग सीरियसली इस प्रोफेशन में हैं, हम लोग जो ब्लेस्ड हैं, आप लोग जो ब्लेस्ड हैं, उनको उनका चैलेंज दुगना चौगुना हो जाता है I understand. कि लोग विश्वास ही नहीं करेंगे तो आप बात किससे करोगे? Definitely, yes. There are a lot of people come to us, they said we don't believe in it. We've lost faith in astrology, so you are our last hope. जी. Sometimes you feel it's so challenging, you feel bad why astrology is going for 6. सही बात है जी. But I guess there are some people, those who just I just say half knowledge is the most dangerous It thing. is. So you have सही to में. have a detailed knowledge on astrology before you start practicing, and then you can always have a double check on whether you go for a matchmaking. गीतांजलि जी, आसानी से बताओ कि कोई कैसे
चेक कर सकता है कि ये एस्ट्रोलॉजर है, इसने हमें जो ये बात बताई है ये ठीक है? एक औरत के लिए, जैसे हम कल भी बात कर रहे थे, अगर ये पता चलता है अरे भाई तुम्हारे पति के ऊपर एक बहुत बड़ी विपदा आने वाली है, हवन करा लो, इतना करा लो, ये सब करा लो, और आपने इसको बहुत सिंपल किया, ब्लेस यू, थैंक यू। आई नीड ब्लेसिंग, एस्ट्रोलॉजर always need blessings, है ना? तो आपने इसको बड़ा आसान और सिंपल कर दिया कि शहरी म्यूजिक तो आप मंत्र तो घर पे भी सुन सकते हो, Yes, है ना? पता I नहीं वो understand. कर रहे हैं कि नहीं कर रहे I हैं, understand. ठीक है? तो उस तरीके से कोई आम इंसान बेचारा अपनी प्रॉब्लम्स में फंस के किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है, अपना हॉरोस्कोप दिखाता है और वहाँ उसको गुमराह कर दिया जाता है या उसको सही बोला जाता है, तो कैसे हम इसको डिफरेंशिएट कैसे करें? क्या कैसे हम जान सकते हैं इसको कि ये सही है? या आई अंडरस्टैंड, वेरी गुड क्वेश्चन। होता क्या है, बहुत लोग आते हैं हमारे पास भी जी। एंड दे से दे ट्राई टू एनालाइज एंड फर्स्ट जज कि मैं क्या बताने वाली हूँ, एंड देन दे से ये हमें पता है। पहले तो आपको रीड करते होंगे ये कैसे बताएगी, है ना? नो नो, एंड व्हाट हैपेंस इज हमारे पास जब तक पहुंचते हैं वो इतने ही एस्ट्रोलॉजर्स के पास जा चुके होते हैं कि दे आर हाफ ऑफ द एस्ट्रोलॉजर्स देमसेल्फ। दे नो शनि का दशा है, राहु में ट्रांजिट में ये है वो है, तो समटाइम्स वी डोंट नो व्हाट टू टेल देम। ठीक है। बट आई फील दैट नॉलेज इंपॉर्टेंट होना, एंड आपको अपने आप में बहुत जल्दी फेथ नहीं करना है किसी के भी ऊपर। ठीक है। हम लोग बहुत जल्दी, व्हाट हैपेंस इज वी हम अपनी बागडोर, अपने थॉट्स की बागडोर बहुत जल्दी दूसरे बंदे के हाथ बड़ा में दे देते हैं। क्योंकि हम परेशान ही बड़े हैं, परेशान बड़े, हमें दुख ही बहुत है, दुख बहुत हम सेंसिटिव बहुत, हम कमजोर बहुत है, हमें बस एक कंधा चाहिए और जहाँ जो मिल गया हम फिर उसके बाद पछताते हैं, हम क्या करें? आई अंडरस्टैंड। Yeah. बट कुछ केसेस में होता है कि आप अगर किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो तो पहले उसको पूरा समझो, उस केस को क्या है, वो कितना सही बताया है उन्होंने आगे आपको, एंड वो समझने के बाद सबसे पहले आजकल क्या होता है, मोस्ट ऑफ द एस्ट्रोलॉजर्स दे आर कीपिंग जेम्स। सो मैं अभी आने वाली हूँ इसके ऊपर। मैंने खैर कुछ आपने बताया था कि ये सेमी प्रेशियस स्टोन्स हैं, ये मैंने बहुत शौकिया पहने हैं, इसका कोई मेरे करियर या पर्सनल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, और वैसे मैंने अंगूठियां उतार के रखी हुई हैं, वो एक सीक्रेट है। पर मुझे ये बताइए कि ये जेम्स कैसे काम करते हैं? क्या ये जरूरी है जानना कोई भी जेम को पहनने से पहले, और कैसे जाने हम? बहुत जरूरी है जेम को जानना, बिकॉज जेम थेरेपी इज अ वेरी डिफरेंट एंड अ वेरी इंट्रिकेट साइंस. Oh. Very intricate. In astrology, the people are wearing gems as per zodiac signs also. जी, But that's not true. Like if you are August born and you are Virgo, so you are wearing a gemstone. That I would not suggest that. जी जी। I recommend gems only after seeing a proper analysis of your horoscope. हॉरोस्कोप के बाद, ठीक। हॉरोस्कोप के बाद, एंड जेम्स जैसे आपने पूछा काम कैसे करते हैं, दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन. लॉट ऑफ पीपल से उनको लगता है पत्थर पहन लिया है, जेम पहन लिया है, मिराकुलसली कुछ रातों रात हो जाएगा, सुबह उठेंगे खजाना साइड में पड़ा होगा, या नौकरी घर पे आ जाएगी, या अखबार में आपका कुछ छप जाएगा, बड़ा नाम हो जाएगा, ऐसे नहीं है। इट्स नॉट लाइक दैट. जेम का कनेक्शन शेरी, इट हैज अ डायरेक्ट कनेक्शन विद सन. Okay. And you know, sun is the main center of solar system. जी, आपने All the बताया planets are revolving around जी, sun. जी. You have to make your sun strong. And how would you strengthen your sun? And when you wear any particular gem, so it filters sun's UV rays, and it goes inside the body. And you know, the body's entire minerals and everything. जी। So the concept जो है totally scientific है. आपने बड़ी सुंदर अंगूठियां पहनी हैं, Thank you. और आप खुद विश्वास करते हो? Yes. आप करते हो? I आप कैसे फॉलो करते हो? आप अपनी एस्ट्रोलॉजी और जो आपकी न्यूमरोलॉजी है, जो आपकी प्रोनोलॉजी है, और इन सब को आप कैसे फॉलो करते हो एवरीडे लाइफ? मैं फॉलो करती हूँ बिकॉज कुछ चीजें से पीपल, आई रिमेम्बर आई मेट फ्यू एस्ट्रोलॉजर्स, या आई मेट फ्यू एस्ट्रोलॉजर्स, दे से अपना मत देखा करो, बहुत इनसिक्योरिटी होती है, अपना आप हॉरोस्कोप नहीं देखो. तो बट आई यूज्ड टू टेल देम, मैं तो अपना देख देख के ही सीख रही हूँ. पर ये माना गया है कि डॉक्टर जो है वो अपना इलाज खुद नहीं कर सकता, वो दूसरे डॉक्टर्स के पास आई जाता है। अंडरस्टैंड, इलाज नहीं कर सकता, बट ट्राई तो कर सकता है. He can always diagnose what the problem is. And what happens is, I have always seen my horoscope and seen how the changes are taking place. And after the change has taken place, I always check back. That this particular dasha was going on. So in this dasha, so and so thing happened. गीतांजलि जी, जो आपने बताया कि हर जेमस्टोन का सूर्य के साथ कनेक्शन है, तो हाउ इट इज़ पॉसिबल? लोग तो कोई ब्लू पहन रहे हैं, कोई डायमंड पहन रहा है, कोई येलो पहन रहा है, तो फिर ये जो जेम्स हैं ये हमारी बॉडी पे कैसे काम करते हैं? फिर एक ही रंग का स्टोन क्यों नहीं पहनना चाहिए? आप बताओ प्लीज. When sun rays passes through prism,
it emits into different color. Vibgyor. True, Vibgyor. So what ठीक है. happens is when we wear, like you're wearing a yellow stone and Right. I'm wearing a blue stone, I'm wearing a sapphire and an emerald, but connection ये है कि this is giving me just the filtered rays. True. It's just वही filtering. कलर आपको फिल्टर होके स्किन पे आएगा. वही कलर ठीक फिल्टर है. होके स्किन पे ठीक आएगा. है. And you all of us know sun's UV rays are not good. बिल्कुल ठीक है. Because we apply sunscreens and we go Yes. out and we use shades, umbrellas. Right. So sun का एक पॉजिटिव रोल हमारे हॉरोस्कोप में बहुत जरूरी है. Right. जैसे अगर कुंडली में सूर्य अच्छा है जी. तो आपके सारे प्लैनेट्स को कंट्रोल किया जा सकता है. ओके. ओके. और अगर अच्छा नहीं है तो? अगर अच्छा नहीं है तो तभी आपको प्रॉब्लम्स होती हैं. बिकॉज सन इज द मेन सेंटर ऑफ योर सोलर सिस्टम. ओके. दैट्स द मेन अथॉरिटी. एंड सेंटर सोलर सिस्टम का है तो सारे प्लैनेट्स तो उसी के रिवॉल्व हो रहे हैं. अगर आप सन को स्ट्रॉन्ग कर देते हो तो इट्स इजियर टू टेक कंट्रोल ऑफ ऑल द प्लैनेट्स व्हिच आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन. राइट. सो हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू बी विद द स्ट्रॉन्ग तो सन. फिर फर्स्ट वी स्टार्ट विद द हॉरोस्कोप. हॉरोस्कोप में जहाँ जो सन की पोजीशन है Yes. उसको देख के फिर हम आगे स्टोन सजेस्ट करते हैं कि Yes. ये स्टोन की ये रेजेस आपकी बॉडी को चाहिए. Yes. और उससे आपका सन स्ट्रांग होगा एंड देन Yes, आप yeah. और इम्प्रूव कर इट हैज सकते टू हैं. बी अ बेनिफिट. लाइक जैसे बोल रहे हैं ना जेम्स कैसे सजेस्ट करते हैं. अब जी. आपके लिए सारे फ्रेंड्स नहीं है. बिल्कुल इस ठीक दुनिया है. में एवरीबडी इज नॉट योर फ्रेंड. True. देयर मे बी पीपल एनिमीज, द Right. पीपल हु आर योर एनिमीज हु जी. हैव द नेगेटिव एनर्जीज, बट Right. यू हैव टू सपोर्ट ओनली द बेनिफिक प्लैनेट्स. Right. यू हैव टू सपोर्ट ओनली योर फ्रेंड्स. सो हॉरोस्कोप चार्ट हम जब स्टडी करते हैं जी. सो वी आर सजेस्टिंग ओनली द बेनिफिक प्लैनेट्स को सपोर्ट करना है. जी. दैट्स ऑल. एंड व्हेन यू Amazing. सपोर्ट दैट यू स्टार्ट सीइंग रिजल्ट्स. जी. गीतांजलि जी, किसी भी इंसान के जीवन में कुछ भी जो वो फील करता है, महसूस करता है, उसकी लाइफ में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं तो उसको वो एक किताब में लिखता है. 44 फॉर्च्यून्स, हाउ इट हैपन, और ये क्या है और हमारी जो ऑडियंस है वो कैसे इससे बेनिफिट ले सकती है. ये बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए अगर आप एक इफ़ यू हैव योर ओन बुक. अगर आप बुक स्टोर्स में जाते हो फॉर एग्जांपल, तो इसको पढ़ के क्या अपना हॉरोस्कोप बना सकते हैं? इसके अंदर ऑलरेडी हॉरोस्कोप है. सपोज फॉर एग्जांपल आई विल जस्ट एक्सप्लेन इट टू यू. कुछ बताइए. हाँ जी. या सपोज दिस बुक, अगर मैं आपकी बुक बनाती हूँ. जी. ओके. सो आई विल स्टार्ट विद योर नेम. नाउ योर नेम इज शेरी. जी. नाउ शेरी जो नेम है उसमें दिस स्टार्ट्स फ्रॉम S and NZY. जी. एंड वॉवल जो है वो कितने हैं एंड कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, उनका कितना इम्पैक्ट है. जी. देन वो नेम से हम आगे चलेंगे नंबर्स पे. लाइक ठीक हाउ है. मेनी नंबर्स यू आर बोर्न विद. फॉर एग्जांपल योर डेट ऑफ बर्थ, कैन आई आस्क यू? जी. या. ओके. पेपर्स में और है, ओरिजिनल और है. No worries. whatever. You can take anybody's date of birth. This is just an example. लाइक 16 जून. 16 June. जी. Okay. So 16 June 19 so and so. जी. Okay. So आपके date of birth में you are not born with all the numbers. There are certain numbers which are missing. All the True. numbers तो नहीं. तो जो certain numbers जो missing है, these are the energies. Okay. These are the energies Right. which are the missing energies which you carry forward from your previous life. तो वो मिसिंग एनर्जीज कौन सी, कैसे पता चलेंगी? जो numbers missing है. जो नंबर मिसिंग है. Okay, so every number is associated with one particular element. ठीक है. तो जब हम आपका न्यूमरोलॉजी पे आते हैं, जी. so न्यूमरोलॉजी में वो we will be giving you a suggestion box. ठीक है. Suggestion box में we will be giving you the remedies की how to cover up those missing numbers. Oh. And when you cover up those missing numbers, you start seeing changes. That is how it जैसे is. आपसे जब बात हुई थी तो आप बता रहे थे कि नाम के कुछ स्पेलिंग चेंज कर दो तो असर चेंज होने लग जाता है, Definitely. फीलिंग्स चेंज हो जाती Definitely. हैं. Because क्या होता था पहले, there are some people जो राशि से नाम रखते हैं. Otherwise आजकल लोगों को they have the western concept कि जो नाम अच्छा लगा रख लिया. Right? आज तो ऐसे ही हो रहा है. People are not going as per moon sign and the sun sign and बिल्कुल the ऐसे ही हो रहा है. nakshatras. They are not going as per constellation True. से नाम रखना है नहीं. So वहाँ पे आके क्या होता है, बच्चे का फॉर्च्यून बहुत अच्छा है, हॉरोस्कोप भी बहुत अच्छा है, बट कई बार नेम की सिग्निफिकेंस इज नॉट एज पर राशि. सो स्ट्रगल्स एंड फ्रिक्शंस, सेटबैक्स लाइफ में आने शुरू हो जाते हैं. Right. True. Now I cannot change your date of birth, but I Right. can change your name. Right? True. I can, if I tell you to change your name, it's easier for you to change your date of birth because you are destined to take birth Okay. in that so and so particular date. So ऐसे इसमें face reading है, जी. and then इसमें there are a lot of things. You know? कैसे मैनेज करते हो? फेस रीडिंग भी है और जेम्स भी हैं और बुक भी लिख ली है और ओ माय गॉड, और हैंड राइटिंग को भी. हैंड राइटिंग कैसे काम करती है ये हैंड बताइए. राइटिंग का भी एक एनालिसिस होता है. शरी, जैसे आप जो अल्फाबेट्स लिखते हो ना, वो एक आपकी पूरी बॉडी है.
When you write A, so it's your complete body. Now how you write down A, so uska pura slant jo A ka upper slant hai, that's your head. And when you write down the G or the lower slant alphabet, they are your lower bodies. So we also detect health problems from graphology. That's your handwriting analysis. So इस book का motto क्या है मैं आपको बताती हूँ. Please. Just in cut short, book का motto है कि आप अपने बारे में इतना जान लो so that no one can make a fool out of you. आपको अपने एस्ट्रोलॉजी की, बर्थ चार्ट की, ज़ोडिएक की इतनी नॉलेज, बेसिक नॉलेज, दिस इज जस्ट द बेसिक बुक अबाउट एवरीथिंग. ना आपके चार्ट में अगर कोई बोले आपको पुखराज पहनना है तो आप बोलोगे भी पुखराज पहन लेते हैं, बट पहनना क्यों है? क्यों पहने हम पुखराज और क्यों हम दूसरा कोई स्टोन नहीं पहने? यू वांट मे बी लाइक टू वेयर ब्लू सफायर, बट आपके हॉरोस्कोप में नहीं है ब्लू सफायर. आपके हॉरोस्कोप में येलो सफायर है, बट येलो क्यों है? Why there are certain colors which are good for you? So that now this field of education of astrology, like you know, we all are educated people and we really want to know कि astrology कैसे काम करती है. ये planets, zodiac signs, constellation, how are they working? Right. So I feel everybody today, in today's time, they should be educated enough कि आपको अपने horoscope की, अपने palmistry की, palm भी connected है. You know, it's so interesting. आपके palm में जो mounts हैं, now for example this is a mount, ये well placed है. So ये mount is associated with one particular finger. ये जो planet है ये मेरा well placed होगा horoscope में. It has to be that. It's a connected. So palmistry astrology से connect हो गई. जी. Astrology में जो birth chart में जो आपके planets हैं वो आपके constellation से connect हो गए. Right. उसमें अगर एक lucky color है आपके लिए, like suppose आपके लिए yellow lucky है. जी. तो आपके लिए कोई बोलेगा अरे लाल रंग मत पहनो. लॉर्ड ऑफ एस्ट्रोलॉजर से इस रंग से दूर रहिए या जो इस रंग से दूर रहिए. तो वो क्यों रहिए आप? जी. वो इस रंग, वो आप कलर्स को समझो कि जो आपके बेनिफिक कलर्स हैं वो आपके फ्रेंड्स हैं, तो फ्रेंड्स के साथ रहो, एनिमीज से दूर रहो. राइट. तो सेम वे कलर थेरेपी वर्क्स. ओके. सो एंड देन वी हैव द मोलोस्कोपी. मोल्स होते हैं बॉडी के ऊपर. ट्रू. या तो उसका भी बहुत कनेक्शन है. आपके बॉडी में जहाँ पे भी मोल है उसका एक कनेक्शन आपके पास्ट बर्थ के साथ है. यस, दैट पर्टिकुलर बॉडी पोर्शन में. और गीतांजलि जी, इससे मुझे अपने दर्शकों को बताना है कि आप पास्ट के जो रिग्रेशंस हैं उनके आप थेरेपिस्ट हैं. कुछ बताइए. तो हमने सिर्फ टीवी पे सीरियल्स के थ्रू देखा और वो लगता है कि वो सब मेड अप होता है, पर आप बताइए कि आपने क्या एक्सपीरियंस किया और इससे हम कैसे बेनिफिट ले सकते हैं. पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी इज अ वेरी ब्यूटीफुल साइंस. जैसे आप कई बार कुछ लोगों को मिलते हो तो आपको लगता है इन्हें आप बहुत पहले से जानते हो. ये सब ऑकल्ट साइंस है. ऑकल्ट साइंस, दे ऑल आर अ पार्ट ऑफ ऑकल्ट साइंस. ओके. सो पास्ट लाइफ इज लाइक आप पास्ट बर्थ में बहुत से रिश्ते आधे अधूरे छोड़ के आते हो. देयर आर अ लॉट ऑफ रिलेशनशिप व्हिच यू कंप्लीट इनकम्प्लीट, व्हिच यू लीव इनकम्प्लीट. सो इन दिस लाइफ टाइम यू आर सपोज्ड टू कंप्लीट देम. Okay. So automatically आपके सामने वो relationships आ जाते हैं, and unless and until you complete them, it's like I would say it's a mandatory, and it becomes very very important for you to complete them. And once you complete, it's a soul upliftment, it's a growth, it's a potential, so it gives a push to your horoscope. How can they have it? I mean, कैसे शुरू करते हैं ये? अगर किसी को अपना पास्ट लाइफ, आज की प्रेजेंट लाइफ बहुत अच्छी नहीं है और हमको लग रहा है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ आ रहा है, कुछ सपना आ रहा है, कुछ दिख रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है, बार बार विजन्स आ रहे हैं, बार बार कोई चीज़ आ रही है, शायद वो पास्ट लाइफ में कहीं से रिलेटेड हो. लोग इसको सुना अनसुना कर देते हैं, बट आप जैसा आप बता रहे हैं कि बिलीव करना चाहिए, इसको एक बारी थेरेपी को करा के देखना चाहिए. तो कैसे वर्क करती है, मतलब आप कैसे शुरू करते हो? ये सबके लिए काम नहीं करती शेरी, लेट मी टेल यू. ओके, इट विल नॉट वर्क for everybody. This will work for a fewer set of people. अगर आपके पास, अगर if you have some phobia, for example आपको बचपन से एक ही सपना आ रहा है कि पानी से डर लगता है. जी. Okay, so आपका पानी के साथ कुछ connection हो सकता है. Sometimes you see yourself drowning in water. Okay. So आपको लगेगा ये पानी में मैं डूब रही हूँ, ऐसा तो कभी लाइफ में हुआ नहीं, तो ये सपना क्यों आ रहा है? So it has a connection with your past birth. क्योंकि पास्ट बर्थ से जब आप प्रेजेंट बर्थ में आते हो तो आपके सबकॉन्शियस मेमोरी में कुछ रेजिड्यूज रह जाते हैं. ठीक है. नो वंडर कुछ बच्चे जो होते हैं फैमिली में वो बोलते हैं अरे ये बहुत अच्छा डांसर है, हमारी फैमिली में तो कोई डांस नहीं करता. ट्रू. एंड कुछ बोलते हैं ही इज अ वेरी गुड सिंगर, सो हाउ कम ही इज, इससे पिछले जन्मों के कुछ संस्कार हैं, ये कैसे? जी बिल्कुल. सो पास्ट बर्थ वर्क्स बोथ वेज, नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव. सो रिग्रेशन मीन्स टू regress a person. Right. There are a lot of cases which I am dealing with. So those are the cases of child molestation.
So in this lifetime Past also, life yeah, में? past life में they were molested. So in this lifetime, what is happening is again and again the rape attempts have been, happening with them. So they have been really, really with low energy level, the women, and we've been regressing them, and they are feeling better and better. फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि गीतांजलि के साथ मुझे टाइम का बिल्कुल पता नहीं चलता और गीतांजलि जी को खुद ये कॉम्प्लीमेंट उनके क्लाइंट से मिलता है, बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट अकॉर्डिंग टू गीतांजलि, दैट शी नेवर लुक्स एट द वॉच। घड़ी को कभी नहीं देखती हैं वो। उनसे आप जितनी देर मर्जी बात कर सकते हैं, आप जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं होते हैं वो आपको बिल्कुल एक प्रोफेशनल तौर पे आपको एज अ क्लाइंट नहीं, एज अ ह्यूमन बीइंग, एक एंटायर ह्यूमन बीइंग जिनकी फीलिंग्स हैं, जिनके इमोशंस हैं, जिनमें कुछ जानने की जिनमें इच्छा है, उनको आपके ही अकॉर्डिंग ट्रीट करती हैं। ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। और गीतांजलि जी, मैं खुद भी ये कॉम्प्लीमेंट दूंगी क्योंकि आपके साथ मुझे खुद को बात करके मतलब ऐसा लग रहा है कि हम बात करते जाएं, जानती जाऊं मैं, कुछ मुझे और पूछना है, मुझे कुछ और करना है, तो मुझे बिल्कुल नहीं पता चल रहा। सो आई कैन इमेजिन कि जब आपको आपके क्लाइंट्स आपको मिलते होंगे, जो आपका उनके साथ एक रिश्ता बन जाता है, वो बहुत ब्यूटीफुल है। तो ये एनर्जीज, ये पॉजिटिवनेस अपनी बॉडी में आम इंसान कैसे लेके आ सकते हैं? आई फील दैट मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले भी बात किया था हमने, मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आजकल नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा है। पीपल आर समटाइम नॉट सीइंग, पीपल आर नॉट हैप्पी सीइंग अदर्स हैप्पी। वो कई बार कुछ लोग होते हैं जो आपको स्ट्रेट अवे कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं, कुछ लोग नहीं करते, दे कीप हैविंग एन इविल आई, और समटाइम दे हैव द नेगेटिव एनर्जी पैटर्न, कुछ नेगेटिव भी बोल देते हैं, या नेगेटिव बोल देते हैं। सो समटाइम्स यू फील दैट ये क्या हो रहा है, आज का दिन अच्छा नहीं निकला, किसे मिल लिया एंड ऑल दोस थिंग्स। सो आपको अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी सप्लाई करना बहुत जरूरी है। सो आप कहाँ से सप्लाई करोगे? Who is going to give you positive energy? Only God. True. Right? So you have to align yourself to Almighty, meditate, pray, and then energize yourself. Okay. Every day. आजकल हमारे पास टाइम नहीं है because we people are running, so there's not a problem. But at least 10 minutes, 20 minutes, जितना टाइम आप आराम से दे सकते हो, you have to just try to meditate with some mantra therapy or some kind of divine instrument. कोई एवरीडे का कुछ मंत्र आप बताना चाहेंगे हमारे? ऐसे मंत्रा का भी एक बहुत ब्यूटीफुल बात बताऊंगी कि हर किसी के लिए एक डिफरेंट मंत्रास हैं जो काम करते हैं। True. हर किसी का हॉरोस्कोप से डिवाइन सिग्निफिकेंस भी अलग है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके लिए लॉर्ड कृष्णा इज अ गुड गॉड, फेवरेबल गॉड, सो किसी दूसरे के लिए वो लॉर्डेस दुर्गा हो सकते हैं। बट हम लोग अपने टेम्पल में सारे भगवान को पूजा करते हैं। ठीक है। सो इट्स लाइक इफ यू वांट टू रियली सेंड अ लेटर टू समबडी, यू नीड एन एड्रेस एंड यू नीड अ पर्सन्स नेम। सो इफ आई आस्क यू व्हिच गॉड you are most aligned to, can you answer? I think no. No. Why? You know why? Because in our temple we have all kinds of gods and goddesses. But you need to have, आपका एक favorable deity है जो आपके horoscope से हम analyze करके बताते हैं. That is the one that is going to be the true protective shield. जहाँ से आपको अपने आप को energize करना है. तो फिर कुल मिला के बात यही आती है कि आपके पास no matter what आपका एक horoscope होना चाहिए. How important it is to see an astrologer? I mean, how frequently we should see an astrologer? I would say once in 3 months. Okay. It's important, even if the time is going right, so that you can protect yourself from the negative forces or from the malefic dasha which is going to come. Just like आपके डॉक्टर, एक डॉक्टर आपको फिजिकली हील कर रहा है, आपको क्योर कर रहा है, और एक डॉक्टर जो है आपको स्पिरिचुअली आपको हील कर रहा है. I know. आप पूरा चेकअप कराते हो ना, तो जब सब ठीक होते हो तभी भी आप पूरा ऑल ओवर करवाना पड़ता है ना. तो एस्ट्रोलॉजी में भी तो इससे कुछ मेंटली भी हील होता है. अगर आप बहुत हील होते हैं, बहुत ही आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर वाला करे कि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई दुख दर्द, दांत में दर्द, बाल में दर्द, कुछ भी ना हो, क्या उसके अलावा भी आपको लगता है कि आपको एस्ट्रोलॉजर के पास जाना चाहिए? प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, राइट? आपके हॉरोस्कोप में अगर आपका चिल्ड्रन हाउस है, आपका हस्बैंड हाउस है, यू हैव योर फाइनेंस हाउस, हेल्थ हाउस, करियर हाउस, सो अगर वो सारे मतलब हॉरोस्कोप में हाँ जी, ठीक है. इन योर हॉरोस्कोप यू हैव ऑल द हाउसेस, और सारे हाउसेस एक चीज से कनेक्टेड हैं. यू हैव योर हेल्थ, यू हैव योर करियर, यू हैव योर
फैशन, लाइक लेडीज आर दीज डेज मोर लॉट ऑफ इनटू फैशन, सो True. हमारे इस बुक में फैशनिस्ता के ऊपर भी बहुत कुछ है कि Okay. अगर आपको शॉपिंग करनी है या इफ यू रियली वांट टू गो फॉर ब्रांड्स, सो देयर आर सम स्पेसिफिक अल्फाबेट्स. एक बार ये जो किताब है हमारे दर्शकों को दिखा दीजिए. या श्योर. इसका कवर पेज मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगता है This ये. is the cover page, and we And have. yes, you can judge a book by its cover. Yeah, definitely, definitely. And I can show you different pages. These are all numbers which we identify, and these are how do you cure about the missing numbers. And then these are the dharma, arth, काम and मोक्ष, like वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी इसमें हमने Yes, कवर की है, because right. our शुरुआत जो हुई थी आपके astrology जितने की, टूर्स हैं ये सारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी के ऊपर वैदिक हैं. एस्ट्रोलॉजी के, because Vedas जो थे it started 5,000 years ago. True. And they are the roots of astrology. And then there is palmistry. We take the palm impressions of our client. Okay. And उनकी पिक्चर्स वो जब हमें भेजते हैं तो उसका हम लोग एनालिसिस करके भेजते हैं. Okay. We do the analysis and we'll send it back to them in the book. And then there is constellation analysis. I don't know, बहुत कम लोगों को ये पता है कि नक्षत्र जो होता है जी. हमारा हॉरोस्कोप में हम लोग सारी चीजें देखते हैं, जी. बट विच नक्षत्र, दैट्स योर कॉन्स्टलेशन. Oh. इट्स अ ग्रुप ऑफ स्टार्स. सो Okay. उसका भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है. दैट आल्सो इज अ वेरी ब्यूटीफुल साइंस, जिससे आपके करियर के बारे में बहुत चीजें पता चलती हैं. Okay. सो एंड देन कितने पेजेस हैं इस बुक में किताब के? अराउंड 200. 200. 200. Oh my Yeah. God. So Wonderful. and then there is the gem therapy, like we were discussing. Yes. So gem therapy में अगर इस बुक में हम लोग आपको एनालाइज करके बता देते हैं कि these are the gems is going to be favorable for you. जी. तो आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे तो you don't have to worry, because you know your gems and you know That's why you are true. wearing it That's true. and what is the reason you are wearing it That's and which house it is strengthening. That's So true. it's like this. Wonderful. गीतांजलि जी, never ending discussion. Never ending. ये ऐसा टॉपिक है जिस पे अगर आप, मुझे लगता है समुंदर में बूंद के बराबर भी हमने बात नहीं की है अभी. Yes, very true. और आपको तो इतने साल लगे हैं यहाँ तक, इसको अभी भी आप पढ़ रहे हो और अभी भी स्टडी कर I'm रहे हो still और studying. इतने सारे लोगों को आपने हील किया है. हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. बहुत कुछ है. अभी आप न्यूयॉर्क में हो, अभी मैंने जाने नहीं देना. हम पर्सनल तौर पे तो मिलते ही रहेंगे आपस में एक दूसरे को, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड. और एस्ट्रो 11 जो ये बुक है फ्रेंड्स, आप इस बुक को गीतांजलि जी की वेबसाइट पे yeah. जाकर आप इस बुक को ऑर्डर कर सकते हो. और मुझे लगता है कि किताबें पढ़ना अपने आप में एक बहुत अच्छी जो है वो हॉबी है, और एक अच्छी किताब को पढ़ना सोने पे सुहागा होने के बराबर है. सो फ्रेंड्स, सोने पे सुहागा मुझे गीतांजलि जी मिली हैं, मेरी मुलाकात हुई है, मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं. इनके पास बैठ के ही मुझे महसूस हो रहा है. सो गीतांजलि जी, इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू. मज़ा आया. एंड उम्मीद करते हैं कि जो लोग हैं आपकी इस बुक से फ़ायदा उठा सकेंगे. Definitely. थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस. Thank you so much. Thank you. Thank you. Namaste. Thank you. Namaste.